In our family, there is a practice. और हमारे परिवार में एक प्रैक्टिस है। It's me and my wife Binny. और मैं और मेरी पत्नी जो है, So every Saturday we will go to market and buy vegetables. और हर शनिवार को जाके मैं और मेरी पत्नी जो है मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं। So that is our almost 2 hours. We'll go to market and buy so many vegetables. और 2 घंटे हम साथ में रहेंगे और बहुत सारी सब्जी हम खरीद के लेकर आएंगे। So like Victor and brothers language, it's a fellowship marketing. और भाई विक्टर भाई ने जैसे सिखाया था, वो फेलोशिप का एक संगति का जैसे एक सब्जी खरीदना मार्केट का समय था। So this week sister said, "Oh, no, we don't have any fellowship marketing. We will order from online." और बहन ने कहा कि ये बार हम बाहर नहीं जाएंगे मार्केट में खरीदने के लिए, ऑनलाइन खरीद के लेकर आएंगे। So we ordered online and instantly within 5-7 minutes it's reached home. और तुरंत ही 5-7 मिनट के अंदर ऑनलाइन घर पर आ जाता है। We are living in a world where instant things have to happen. और हम ऐसे संसार के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर बहुत ही तुरंत ही चीज़ें होती है। Within 5 minutes, 7 minutes, the item will reach your home. और 5 और 7 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो घर पर आ जाती है। Even curry is also now instant chicken powder, chicken curry, make everything will be available. और चिकन करी या ऐसे भी बहुत ही इंस्टेंट होने वाली चीज़ें भी मिलता है। But sometimes we will also adapt to instant things with our relationship with the God also. और कई बार हमारा ये इंस्टेंट जो है तुरंत ही हो जाने वाली बातें जो संसार में है, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध में भी उसको अनुभव करने लग जाते हैं। We will ask prayer, okay fine. Then we expect that God instantly want to answer my prayer. और जब हम प्रार्थना करते लगता है प्रभु तुरंत ही मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहिए। मेरा job will be great, up and up, instantly it should go to the और higher प्रभु level. मेरी जॉब में है जो तुरंत ही बहुत ही जल्दी ऊपर ही जाना चाहिए मेरा प्रभु जॉब में। marriage should happen immediately when I ask the Lord. और शादी भी तुरंत जब मैंने मांगा है तुरंत तभी हो जानी चाहिए। I think it's right with us, right? We all always expect instantly everything should happen. और तुरंत ही, क्योंकि हम लोग बहुत ही ये हम अपेक्षा करते हैं कि तुरंत सारी चीजें होनी I चाहिए। want to turn to a Bible incident, very simple, even small children knows. और छोटे बच्चों को भी ये घटना बाइबल की पता है, उसमें मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। And this is John chapter 11. यूहन्ना 11 अध्याय। There we all know the resurrection of Lazarus. और हम लाजर के पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। And the meaning of Lazarus is God is my help. और लाजर जो है शब्द जो है उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर मेरी सहायता। And we will go verse by verse. Certain things God spoke to me through this simple incident. और ये घटना से परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझसे बातें की। John is very interestingly telling this incident. और जो है यूहन्ना बहुत ही रुचि के साथ इस कहानी को बताता है। And you all know that Lazarus is the brother of Martha and Mary. हम सभी जानते हैं लाजर जो है मार्था और मरियम का भाई है। And this is a house, it is believed that, okay, it's a big house where frequently Jesus and disciples always go and visit there. और ये घर जो दो बहनें एक भाई का जो है अक्सर जो है यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आता था। But we all know that Lazarus becomes sick. हम जानते हैं लाजर जो है वो बीमार हो जाता I है। was imagining like the doctor said, okay, fine, he is in the ICU, he is given oxygen, so there is no hope. You go and tell all the relatives. और यहाँ पर मैं कल्पना करता हूँ कि जैसे वो आईसीयू में होगा और डॉक्टर ने कहा होगा कि कोई आशा नहीं है, अब रिश्तेदारों को जाकर बोल दो कि अभी कोई आशा नहीं बची है। And accordingly, Martha and Mary is sending a messenger to Jesus. और वहाँ पर मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास एक दूत को भेजते हैं। And I want to read verse 3. और उसके 3 वचन को पढ़ना चाहूँगा। Here it is, Sir, your good friend is very, very sick. और यहाँ लिखा है कि हे प्रभु देख जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। Yes, it is written, the Jesus whom you loved, he's in sick. और जैसे लिखा है कि यीशु जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। See the way Martha and Mary is sending the message. और देखिए किस रीति से मार्था और मरियम उस संदेश को भेजते हैं। And see, I was little attracted by this was they selling Jesus whom you loved, he is on sick. और जैसे बहुत ही ये मुझे आकर्षित करता है कि जिससे तू प्रेम करता है वो व्यक्ति बीमार है। That is true also. और ये सच बात भी है। Because that's why Jesus is always going to their house, having fellowship with Lazarus, Martha and Mary also. और इसी कारण से क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था इसलिए मार्था मरियम और लाजर के घर पर अक्सर यीशु आता था। Brother and sisters, see, when God is telling me, see, I say I love you, God. और जब भाइयों बहनों हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, Santosh brother said, okay, say praise the Lord loudly. We said praise the
the और Lord. संतोष ब्रदर ने बोला प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले, तो हमने भी जोर से बोल दिया We'll say that God is loving me. और हम कहते कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, We'll sing that God is loving me. और हम इसका मतलब जो प्रभु मुझसे प्रेम करता है, But like Jesus and disciples going to Lazarus' house, whether can you examine? God is talking to me that whether God is really dwelling in my house with great love. और जैसे यीशु अक्सर मार्था मरियम के घर पर जाता था, कैसे परमेश्वर वैसे मेरे जीवन में क्या उसी प्रेम के साथ मेरे साथ संगति करता है। I don't know, a few Sundays before, a small incident I saw here. और कुछ रविवार के पहले यहाँ पर एक घटना को मैंने देखा, Our Ethan was angry with something with Meena sister. और जो छोटा ईथन जो है वो मीना सिस्टर के साथ वो गुस्से में था। He is running and Meena sister is saying that sorry beta करके she is running behind Ethan. और वो छोटा वो भाग रहा था और वो जो मीना सिस्टर उसके पीछे सॉरी सॉरी करके भाग रही थी। But Ethan is saying no, I am going there. Sister is going behind him. और जैसे वो बच्चा भाग रहा था लेकिन मीना सिस्टर उसके पीछे भाग रही थी। So when I see and when I meditate on this one, whether is God is running behind that to restore the relationship with you, or you are already sitting in the Lord presence and loving and having that loving और relationship इस with God. घटना से मैं सोच रहा था कि क्या परमेश्वर हमारे पीछे भाग रहा है हमारे उसके रिश्ते को स्थापित करने के लिए, या उसकी बजाय हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे उससे प्रेम करते उससे सुनने के लिए। See the way they're expressing Jesus, you loved him. He is on sick. और देखो यहाँ पे अभिव्यक्ति इस प्रकार है कि जिससे तू प्रेम करता है, जिस व्यक्ति से, वो बीमार है। Sometimes we will also come to a stage where like the Lord, you answered my prayers quickly when I came to Christ. और जब हमारी इसी प्रकार से होता है कि प्रभु जब मैं तेरे पास आया था, मैंने जब प्रार्थना किया तो प्रभु तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ही दिया था। There are days when I asked in a problematic situation, you instantly you answered my prayers. और ऐसे दिन थे जब समस्याओं के अंदर मैंने प्रार्थना की और प्रभु तुरंत ही तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। When I was in a door not opening, but you have opened the door where the stumbling blocks are there, you removed everything instantly. और जब दरवाजे बंद थे वहां पे प्रभु तूने तुरंत वहां पर प्रभु दरवाजे खोले, जहां अवरोध थे, प्रभु बाधाएं थी, उसको तूने तुरंत ही दूर किया। But what happened now? और अब क्या हुआ प्रभु? You are not here? प्रभु तू यहाँ नहीं है? Is he still loving us? और प्रभु क्या फिर भी तू हमसे प्रेम करता है? I want to read the reply of Jesus. और यीशु का उत्तर मैं पढ़ना चाहता हूँ। Jesus is not giving a solution for the crisis situation or critical situation. और वहां पर जो समस्या जो है, वहां पर जो चीजें हैं, उसके लिए प्रभु कोई समाधान यीशु मसीह नहीं दे रहा था, But he is answering. लेकिन वहां पर उत्तर दे रहा था। Verse 4. वचन 4 में The purpose of his illness is not the death. ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। Yes, brothers and sisters, the stumbling blocks or whatever we are right now facing may be critical, and doctor said no, or we say we are not seeing anything, but God is telling you that that is not for your death. और हो सकता है कि किसी डॉक्टर ने या किसी मनुष्य की उस परिस्थिति या कोई समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं, हम देख सकते हैं वो बाधा के रूप में हो सकता है, लेकिन ये हमारी मृत्यु के लिए नहीं है। The second part, but for the glory of the God, I, the Son of God, will receive glory from this situation. और परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। Brothers and sisters, we will come to a stage where there is nothing is there before, everything is closed, everything is death. और हम ऐसी जगह पर भाइयों बहनों आएंगे, हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, सब कुछ मृत्यु की अवस्था में, सब कुछ बंद हो चुका We है। know the story. Within 2-3 days, Lazarus is dead. हम जानते हैं 2-3 दिन के अंदर लाजर की मृत्यु हो जाती है। We will come to a situation where financial crisis, impossible situation, nothing is opening up. और हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे असंभव हालातों के अंदर, आर्थिक कठिनाइयों के अंदर, जहां कुछ भी खुला हुआ नजर नहीं आता है, ऐसे हालातों का सामना करेंगे। Sometimes we will say that when my husband will change to a God, or when my children will follow you और कई faithfully. बार हम सोचेंगे कि कब मेरे पति जो है यीशु का ग्रहण करेंगे, कब मेरे बच्चे यीशु का अनुसरण करेंगे, When my wife will listen to me, when my wife will submit to me. और कब मेरी पत्नी मेरी बात को सुनेगी और मेरे अधीनता में अपने आप को लेकर आएगी। Jesus is telling that it is not meant for death. और यीशु मसीह कहता है कि ये बात जो है मृत्यु के लिए नहीं है, It is for the glorification of the God. और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। It is from the starting onwards. और ये आदि से लेकर ही This same situation is there. और यही परिस्थिति को हम देखते हैं। And I want to read Romans chapter 8, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 19 to 25. 19 से 25।
For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subject to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। Yes, it is from the Lord. ये परमेश्वर से है। And verse 22, और 22 वचन, we know that the whole creation has been groaning as it pains of childbirth right up to the present time. और क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ा में पड़ी तड़पती है। And verse 24, 24 वचन, for in this hope we were saved, but hope that is seen no hope at all, who hopes for they already have. आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। And I want to read in Living Translation. और मैं लिविंग अनुवाद में उसको पढ़ना चाहता हूँ। Verse 22. 22 वचन में, For we know that even the things of nature like animals and plants suffer in sickness and death as they await this great event. और यहाँ पर लिखा है कि 22 वचन के अंदर हम जानते इस बात के कि जो सृष्टि है या फिर जानवर है या फिर फल पौधे हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये मृत्यु है, सब कुछ इस आशा के साथ इस घटना के लिए इंतजार करते हैं। And the verse 23. और 23 वचन, And even we Christians, although we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory, also groan to be released from pain and suffering. और हम एक विश्वासी या मसीह होने के नाते भी जो पवित्र आत्मा के हमारे पास जो होता है, हम उस आने वाला जो स्वाद जो है, जो भविष्य में हमको परमेश्वर की महिमा में मिलने वाला है, हम भी उसके साथ उस महिमा और उस दर्द और उस पीड़ा के अंदर सहते हैं। Yes, it is written in the word. और यहाँ पर जिस प्रकार वचन में लिखा है, I want to turn our attention to one beautiful family, Abraham uncle and Sarah auntie. और यहाँ पर अब्राहम अंकल और एक सारा आंटी है। And I want to turn here Genesis chapter 15 verse 1 to 6. और उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 15 1 to 6. 1 से 6 वचन। And there is a conversation happening between Abraham and God. अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक बातचीत होती है। And there Abraham is saying that in a vision he is saying that do not be afraid, Abraham, I am your shield, you are you very great reward. और परमेश्वर उसको दर्शन में देकर कहते हैं, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल तेरा मैं हूँ। And verse 2. वचन 2, But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I am remain childless and the one who will inherit me my estate? And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be higher. अब्राहम ने कहा, प्रभु परमेश्वर, मैं तो संतानहीन हूँ, मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। And verse 5. वचन 5, God is taking Abraham to outside. और परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर जाता है Look at the sky, और कहता है कि आकाश की ओर दृष्टि कर count the stars. और तारा जो है तारेगण को गिन, If you can count them, then he said, so shall be your offspring be. और क्या तू उनको गिन सकता है? यदि तू उनको गिन सकता है तो तेरा वंश ऐसा ही होगा। And verse 6. और 6 वचन, Abraham believed the Lord और परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया and he credited him as righteousness. और उसके लेखे में वो धार्मिकता गिना गया। Abraham, Sarah having how many sons? और कितने बच्चे उनको थे अब्राहम और सारा को? Only one. एक ही था। But how can God is showing to the sky and shown to him? How it got fulfilled? और कैसे परमेश्वर उनको आकाश की ओर दिखाता है और कैसे उस तारागण को दिखाकर ये वचन को कैसे पूरा करता है How it could be a blessing? और कैसे उसको एक आशीष का कारण बनाता है। I want to turn to Romans chapter 4 verse 18. रोमियो 4:18, Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. और उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। How come he became blessing to the nations? और कैसे एक राष्ट्रों के लिए वो आशीष का I कारण want to बना। emphasize on that word, against all hope. और यहाँ पे जैसे आशाहीन परिस्थिति में भी उसने आशा रखी परमेश्वर पर। Abraham believed. अब्राहम ने विश्वास किया। I want to turn to attention another uncle and auntie, और एक अंकल आंटी है Zachariah and Elizabeth. और जकरिया और एलिजाबेथ। Lucas chapter 1.
लूका उसका पहला अध्याय Verse 6, I want to read. और वचन 6। Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। But they were childless because Elizabeth was not able to conceive and they were both very old. और उसके कोई संतान ना था क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। And you know what happened to later on? They got John as a child. हम जानते हैं आगे क्या होता है, उनको एक संतान होता है जिनको वो यूहन्ना होता है। Why I mentioned these uncle and aunties to you? और ये अंकल और आंटी को क्यों मैं आपके सामने बता रहा हूँ? They are not unrighteous with the God. और ये परमेश्वर के साथ अधर्मी नहीं है। Both families have been following God very closely. और ये दोनों ही परिवार जिसके बारे में हमने अभी देखा परमेश्वर के बहुत नजदीकी से अनुसरण उसका करते हैं। Now we look upon the addressing of Martha and Mary about Lazarus to Jesus. और यहाँ पर जो है मार्था और मरियम लाजर के बारे में यीशु मसीह को कैसे संबोधित करते उसको देखा हमने। Jesus, you loved him. और यीशु तो जिससे प्रेम करता है He is on sick. और वो बीमार है। They are at the closed doors. और यहाँ पर एक ऐसे बंद दरवाजे पर वो खड़े हुए हैं। Brothers and sisters, if you believe that Jesus is loving you, और भाइयों बहनों यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, if you believe that God is intensely loving you, और यदि आप विश्वास करते हैं कि बहुत ही तीव्रतर बहुत ही अधिक परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, God will allow certain situations in our life where we will face deaths. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसे परिस्थितियों का अनुमति देगा जहां पर हम मृत्यु की अवस्था को हम सामना करेंगे There is no hope at all. और वहां पर कोई आशा ही नहीं है। We will cry out to Lord. और हम वहां परमेश्वर को पुकारेंगे केवल, And Lord will say, this is not for death, it's a glorification of God. और वहां परमेश्वर कहेगा ये मृत्यु के लिए नहीं है लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बात है। That needs our faith and consistent prayer. और हमारा विश्वास हमारी निरंतर प्रार्थना जो है That will lead to that glorification of God. और यही परमेश्वर की महिमा में हमारी अगुवाई करके लेकर जाएगा। Last week, Abongal have shared in the Bible study Romans 8:28. और भाई अबू ने लास्ट बाइबल स्टडी में रोमियो की पत्री 8:28 से बताया, And we know that all things God works for the good for those who love Him, whom have been called according to His और purpose. हम जानते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। There also said, who loved. और यहाँ पे लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Can I examine ourselves? Are we really loving God? और क्या हम अपने आप को जांच सकते क्या मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? We'll go to the story, incident again. और उस घटना में वापस हम I लौटेंगे। want to read John 11:6. और यूहन्ना 11:6। We know that there Jesus is waiting for 2 days and then he is going to Lazarus' और place. यहाँ पर 2 दिन वहाँ पर और ठहर जाता है यीशु मसीह और उसके बाद वो लाजर के वहाँ जाता है। We know that, see, Jesus is always listen to his father. और यीशु मसीह हमेशा अपने पिता को सुनता था। Sometimes we'll say Jesus is not answering our prayers, God is not answering, but he is answering our prayers, but sometimes it will get delayed also. और कई बार हमें लगता है कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कई बार इंतजार करना हो सकता है, देरी हो सकती है। One more, Jesus is encouraging his disciples also. और यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करता है In verse 14. 14 वचन में। So Jesus then said to them plainly, Lazarus died, and I am glad for your sakes that I was not there, so that you may believe, but let's go to him. और वह यीशु ने उनको साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। So I believe that this incident will be written in the Bible for you and me. और मैं विश्वास करता हूं ये घटना, ये बात जो है आपके और मेरे लिए लिखी गई है। There are small emphasis of words in this incident for you and me. और छोटी छोटी जो जोर दी गई बातें इस घटना के अंदर जो शब्द है वो मेरे और आपके लिए है। And come to 11 verse 21. और 11:21 में जब हम आते हैं, Martha is saying to Jesus, और मार्था यीशु मसीह से कहती है, if you had been there here, my brother would not have died. और- But I know that even now God will give you whatever you ask. मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। See the consolation or what Jesus is replying to Martha. और यहाँ पर क्या सांत्वना यीशु मसीह उत्तर देते हुए मार्था से क्या कहता है? Verse 23.
23 वचन, your brother will rise again. तेरा भाई जी उठेगा। Then verse come to 32. और 32 वचन में हम देखेंगे, Mary also came and she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would have been not died. और तब मरियम वहां पहुंची और उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। When Jesus saw her weeping in 33, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. और तब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखकर आत्मा में बहुत ही उदास होकर व्याकुल वो हो गया। We can understand the power of fellowship here. और यहाँ पर हम देखते हैं कि संगति की सामर्थ्य कैसी होती है। Jesus is moved by seeing the Martha and other Jews are groaning in his heart. और यहाँ पर मार्था और मरियम को देखकर अन्य यहूदी जो मन के अंदर शोकित है, यहाँ पर देखकर यीशु मसीह अपने मन में उदास और व्याकुल होता है। See what happened to Jesus? और यीशु मसीह को क्या हुआ? Verse 35. 35 वचन, Jesus wept. यीशु रोया। Yesterday one sister was sharing in the testimony time. और कल एक बहन बता रही थी गवाही के समय में, When I known to a problem of a sister, और जब मैं किसी बहन की किसी समस्या के बारे में जानती हूँ she was worried about that. और उसके बारे में वो चिंतित होती है, But she was prayed with another sister that increase her faith and fellowship. और किसी और बहन के साथ मिलकर वो उस बहन के लिए प्रार्थना करती जिसके साथ कारण उनका विश्वास और संगति बढ़ जाती है। When our fellowship increases and ask the Lord, Lord's heart also will go along with the weeping of us. और जब हमारी संगति जो है अन्य लोगों के साथ बढ़ जाती है तो परमेश्वर का हृदय भी हमारे साथ उस बातों में वो सहानुभूति रखता है या रोता है। That's why God sympathizes with our weaknesses. और इसलिए परमेश्वर हमारे कमजोरी के अंदर हमें समझता है। That's why Hebrews 4:15 says like this. और इब्रानियों 4:15 के अंदर जैसे लिखा है, Now that we know that we have Jesus, this great high priest with ready access to God. इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके परंतु हमारे लिए वो तैयार रहता है। And message version is little like that. Jesus, this great high priest with ready access to God. और यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो हमारा जो महायाजक जो है वो तुरंत ही हमारी सहायता करने के लिए तुरंत वो उपलब्ध है। This describes that Jesus is a high priest who understands our human struggles. और यीशु मसीह जो हमारा महायाजक जो है जो हमारे मानवीय संघर्षों को समझता है, He understands our pains. हमारे दर्द को वो समझता है। I want to show one more verse. Psalms 103, भजन संहिता 103 13 and 14. 13 और 14। Psalms 103, 13 and 14. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। For he knows how we are formed, he remembers that we are dust. क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। Jesus, God created us. और परमेश्वर ने हमको बनाया है। God knows our weaknesses. परमेश्वर हमारी कमजोरियों को भी जानता है। He knows that I am a human being. I cannot open any blocked doors. और परमेश्वर जानता है कि मैं एक मनुष्य हूँ और बंद दरवाजे जो मेरे सामने हैं उसे मैं नहीं खोल सकता। That's why Jesus wept. और इसलिए यीशु रोता है। Jesus loved them. और यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था। And I want to show another, the same thing. We'll come to John chapter 11 only. और यूहन्ना 11 में और एक बात को मैं दिखाना चाहूंगा। Some of these Jews standing there, he is commenting about Martha, Mary and Jesus' relationship. और यहाँ पर कुछ यहूदी खड़े थे जो यीशु मसीह का रिश्ता जो है मार्था, मरियम और लाजर के साथ उनके बारे में कुछ टिप्पणी देते हैं। Verse 36. और 36 वचन देखें। It is written, they were close friends. The Jewish leader said, see how much he loved them. और 36 वचन में यहूदी कहने लगे देखकर देखो वह उससे कैसा प्रेम करता था। But some others said in 37 and 38. और 37 वचन में लिखा है, This fellow healed a blind man. Why couldn't he keep Lazarus from dying? और क्या जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि ये मनुष्य न मरता। We have to imagine that earlier we saw that Jews are coming and weeping along with Martha and Maria. और कुछ यहूदी यीशु मार्था और मरियम के पास आकर जब यीशु मसीह के पास आकर रोते हैं। But now some people are criticizing और also. कुछ लोग अभी आलोचना कर रहे हैं। Why he cannot keep alive?
अब कब उसके क्यों अब वो जिंदा न रख पाया? Sometimes when you come to the stage of blockages in our life, और कई बार जब हम ऐसे स्तर में आ जाते हैं जब सब कुछ हमें अवरोध या बंद दिखता है, who are close to us, और जो भी हमारे नजदीक पाए जाते हैं, अरे you are a Christian, और आप तो मसीह है, you are a believer, आप विश्वासी है, you are following Jesus Christ. यीशु मसीह का अनुसरण आप करते हो, Now what happened? क्या हुआ? Your God is not answering you. आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। But remember, that is not for death. और ये याद रखें ये मृत्यु के लिए नहीं है। God is going to reveal certain things in our life. और परमेश्वर कुछ बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करेगा। See the response of Jesus? यीशु का प्रत्युत्तर यहाँ पर आप देखें, He is remaining silent. और यीशु पूरी तरह से शांत है। Whatever criticism he is saying, that he is not at all responding or giving ear to that what they are saying. और जितने लोग यहाँ पर विरोध में बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, यीशु मसीह बिल्कुल भी उसका प्रत्युत्तर नहीं देता है, He believe in the Father. क्योंकि वो पिता के ऊपर विश्वास करता है। I don't understand everything, but I trust the one who holds my life. मैं सब कुछ सारी बातें नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मैं उसे जानता हूँ जो मेरे जीवन को अपने हाथों में रखता है। Jesus as a man knows that the same Father who helped me before, he will help me again. और यीशु जानता था कि जिस पिता ने मेरी पहले मदद की है वो अब भी मेरी सहायता करेगा। How can you know that? और कैसे हम जान सकते हैं? Verse 40. और वचन 40, Then Jesus, did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? और यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Verse 41. 41 वचन, So they took away the stone. और तब उसने पत्थर को हटाया। Then Jesus looked up and said, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, Father, I thank you that you heard me. हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। I know that you always hear me. मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझको भेजा है। Verse 43. और 43 वचन, When he had said, Jesus called in loud voice, Lazarus came out. और ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। How much happiness for Mary and Martha. और मरियम और मार्था के लिए कितनी बड़ी आनंद की बात है। His hand, verse 44, the dead man came out, his hand and feet wrapped with stripes of linen and a cloth around his face. जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकला और उसके मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। Jesus said to him, take off the grave clothes and let him go. और यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। This is the glorification of God. और ये परमेश्वर की महिमा है। Can you imagine that? Okay, fine. When Martha and Mary sent the messenger to Jesus Christ, और आप कल्पना करके देखिए, जब मार्था और मरियम ने उस संदेश को यीशु मसीह के पास भेजा था, immediately Jesus came, तब तुरंत ही यीशु मसीह आ जाता gone है to the hospital. और तुरंत ही अस्पताल में जाते Healed हैं him. और उसको चंगाई देते हैं। That is a miracle. ये चमत्कार हो सकता था ये। But can you imagine the resurrection happening from the deadly situations in our life? और आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो मृत्यु की समान परिस्थितियों के अंदर से जब पुनरुत्थान हम पाते, वो कैसी परिस्थिति है। God wanted to teach us this thing. और परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, When you come to a situation where is nothing is on front, और यहाँ पर जब हम ऐसे हालात में आ जाते जब हमारे सामने कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद है, like brother Santosh brother said, praise the Lord. और जैसे भाई ने कहा कि हमें प्रभु की स्तुति करना है, He teaches more and more. Say praise the Lord. और जैसे वो सिखाते हैं हम प्रभु की स्तुति ऐसा कह We सकते will हैं, say praise the Lord. हम कहेंगे प्रभु की स्तुति हो। Lord, you are going to have a resurrected life through this situation. और हम ये कह सकते हैं कि प्रभु इन हालातों के द्वारा, इन परिस्थितियों के द्वारा तू अपने आप को पुनरुत्थान करके मेरे जीवन में प्रकट कर। It is not happening in our life to deaths. और ये हमारे जीवन के अंदर मृत्यु के लिए नहीं हो रहा है, It's not the situation happening in our life to death to my life or my relatives. और मेरे परिवार, मेरे स्वयं के लिए, मेरे रिश्तेदारों के सामने मृत्यु के लिए नहीं हो रहा है, But it needs a faith in the waiting. और यहाँ पर इंतजार करते हुए जब हम होते हैं, विश्वास की आवश्यकता होती I है। want to turn your attention to Isaiah chapter 40 verse 31. और यशायाह 40:31, There it is. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not to be weary. They shall walk and not faint. परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे पर थकित न होंगे। To whom it is written? किसके लिए लिखा है? Can you imagine Abraham and Sarah? और अब्राहम और सारा को आप कल्पना कर सकते हैं, Zacharias and Elizabeth? और एलिशबा और जकरिया को कल्पना कर सकते हैं।
If those things, delayed things happen in their life, it can happen to you and me also. और जब उनके जीवन में उनको इंतजार करना पड़ा तो हमारे जीवन में भी हो सकता है। That needs the wait for the Lord with strong faith. और यहाँ पर हम परमेश्वर की बाट कैसे जोते हैं? एक मजबूत विश्वास के साथ। I want one more thing, trust in the silence. और यहाँ पर जब हम शांत होते हैं तब हमें भरोसा करना है। I want to turn Psalm 37:7. और भजन संहिता 37:7। It is written that be still before the Lord and wait patiently. परमेश्वर के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। How many of us can patiently silent in this situation? और हम में से कितने उस परिस्थिति के अंदर हम धीरज के साथ शांत रह सकते हैं? Some things happening in our life where sometimes people will sit on our head and some bad words automatically will come to our mouth, out from our mouth. और हो सकता है कुछ लोग हमेशा हमको परेशान करके हमारे सर पे जैसे बैठे हो और कुछ ऐसे शब्द जो गलत होंगे हमारे मुख में आएंगे। But this give a great comfort for us. और ये हमें एक सांत्वना देता है। Be still before the Lord and wait patiently for Him. परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। Then we will think that if that is the case, I am in the darkness. और यदि ये है तो मैं एक अंधकार में हूँ। But there is a hope in the darkness. लेकिन उस अंधकार के अंदर भी हमारे लिए एक आशा है। I want to read one more verse. एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। Micah chapter 7 verse 8. मीका 7 अध्याय उसका 8 वचन। And that is the second part. और उसका दूसरा भाग जो है उसी Though I sit in darkness, the Lord will be my light. और जो ही मैं अंधकार में पढ़ूंगा त्यों ही परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम देगा। Though I sit in the darkness, the Lord is my light. और यदि मैं अंधकार में पढ़ूंगा तो परमेश्वर मेरी ज्योति होगा। Brothers and sisters, sometimes there will be delay from the Lord. और हो सकता है कई बार परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर कुछ बातों में देरी हो सकती है। Delay in answering our prayers. हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की में देरी हो सकती Delay in है। having the clarity what to do next. और हमारे जीवन के अंदर आगे क्या करना है उसमें साफ नहीं दिख रहा है, उसमें शायद देरी हो सकती है। Maybe the world say no, nothing, no more, you cannot go ahead. और संसार में शायद सब लोग कह सकते हैं सारी बातें कि अब आगे बिल्कुल भी आप नहीं बढ़ सकते। We will come to a stage where we will cry out, Lord, where are you, Lord? और ऐसे स्तर पर हम आकर परमेश्वर के सामने पुकार के कहेंगे कि प्रभु तू कहाँ है? God will say that just wait, I am doing something greater for you. और प्रभु हमसे कहेगा कि तू केवल इंतजार कर, मैं तेरे लिए कुछ महान बात कर रहा हूँ। I can boldly say that. और मैं ये इसको बहुत ही निडरता साहस के साथ कह सकता Because हूँ। when I gone through the difficult situation, through my health और situation, मेरे स्वास्थ्य के संबंध में जब मैं बहुत ही कठिन हालात से गुजरा मैं, I really cried out to और Lord, मैंने परमेश्वर को वास्तव में इस प्रकार से पुकारा था, Lord, where are you? और प्रभु तू कहाँ है? But now I can stand here and boldly say that God have been really saved me. और मैं यहाँ पर निडरता से कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने सच में मुझे बचाया है। Brothers and sisters, this is not for our deaths. और भाइयों बहनों ये हमारी मृत्यु के लिए नहीं है। No situation in our life is not for the deaths, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति मृत्यु के लिए नहीं है, but for the glory of God. ये परमेश्वर की केवल महिमा के लिए है। So keep trusting, और आइए हम निरंतर परमेश्वर पर भरोसा करें, keep believing, उस पर निरंतर विश्वास करते रहे, keep waiting for the Lord. और हम परमेश्वर पर हम उसकी बाट जोते रहे। If God delays, और यदि परमेश्वर हमें वहां देरी करता है परमेश्वर, He is preparing a miracle that speak for generations. और परमेश्वर वहां पर ऐसे चमत्कार को तैयार करना चाहता है जो पीढ़ी से पीढ़ी उसकी बात होगी। I am inviting you and all to this glorious life. और मैं आप सभी को इस महिमामय जीवन के अंदर आमंत्रित करना चाहता हूं। I want to share one more truth from this incident. और इस घटना से और एक सत्य को मैं बांटना चाहता हूं आपके You know साथ। that Lazarus was completely dead. और हम जानते हैं लाजर जो है पूरी तरह से मर चुका था। And we know that when Jesus is calling, Lazarus came outside with wrapped with linen and clothes with clothes. और यहाँ पर जब यीशु मसीह उसको जीवित करता है तो पूरी तरह से कपड़ों से जैसे वो बंधा हुआ था। If anyone thinks that I am wrapped in sin, I am spiritually dead, this incident's for you and me. और यदि आप ये सोचते होंगे कि आप पूरी तरह से पाप से जैसे जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और वहां पर ये आशा आपके लिए आज है। That's why one verse is written there. और इसलिए वहां पर एक वचन लिखा है, John 11 verse 25 and 26. और 25 और 26 उसी अध्याय में। Jesus said to her, और यीशु मसीह ने उससे कहा, I am the resurrection and the life. यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं The हूँ, one who believes in me will live. और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। Yes, even though they die, and whoever lives believing in him will never die.
Do you believe this? और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? This is a great hope for us. और ये हमारे लिए एक महान आशा है। One illustration is written through the Bible of Zach brother. और भाई थ्रू द बाइबल में एक घटना वहाँ पे एक दृष्टांत लिखा गया है। It is good that the rain to fall, ये अच्छी बात है जब बारिश जो है वो गिरती है नीचे, but rain alone cannot produce a crop. लेकिन बारिश केवल गिरने से वहां पर कोई फसल नहीं आ जाती है। There must be a seed in the ground और वहां पर उस भूमि के अंदर एक बीज का होना जरूरी है, that has died. और जो पूरी तरह से मर चुका हो। In the same way, we have to die to ourselves. इसी रीति से हमें अपने आप के लिए मरना है। We have to look upon God. हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना है। God is repeating, it is not for the deathly situation in our life. और परमेश्वर दोहराता है, ये हमारी मृत्यु के लिए, हमारे जीवन में ये अवस्था नहीं है, It's a glorification of the ये God. परमेश्वर की महिमा के लिए है। I want to read one more verse and close it. और एक वचन को पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगा। Romans chapter 8:34. रोमियो 8:35 8:34. और 34 वचन। Whom then will condemn us? Will Christ? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह। For he is the one who died for us and came back to life again for us, and sitting at the place of highest honor next to God, pleading to us in और heaven. मसीह वह जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Yes, when we are at the verge of many difficult situations, और जब हम ऐसे हालात में कगार पर होते हैं जहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियां और हालातें ऐसी होती है, Jesus also weeping. और वहाँ यीशु मसीह भी हमारे साथ रोता है, Jesus also pleading to और God. Father. यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सामने मध्यस्थी विनती करता है। That is our hope. ये हमारी आशा है। No need to worry about anything. हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, Keep believing. हमें केवल निरंतर विश्वास करना Keep है, trusting. केवल निरंतर हमें भरोसा करना है। God help you. प्रभु हमारी सहायता करेगा। Amen. आमीन।